Good morning, students. Students, as I discussed in the earlier video, that animal tissues are of four different types, and yesterday I initiated the very first one, animal tissue, epithelial tissue. Today, I want to discuss this tissue in more detail. As I mentioned earlier, that this is a kind of protective tissue, as well as it also helps in the process of the secretion of the various things, and also helps in the absorption of the many things. Today I will discuss various types of epithelial tissues. So I want to tell you that depending on the shape as well as the function of the cells, the epithelial tissue is classified in five different types. Now I am repeating myself. On the basis of the shape and the function of the cells, the epithelial tissue is classified into five different types. Now, what are these five types? I am going to tell you that one by one I will discuss about them. The first one is called squamous. And if you will observe the figure, in the figure you can easily find out that the squamous tissue, epithelial tissue, contains flat cells, means those cells which are flat. Now the second one is cuboidal. Now name is suggesting that the shape of the cell will be cube shape. Third one is columnar. Now column shape. Now what is column? If you will observe the pillar of your house building, then it appears like a column. Okay, so these are tall and pillar like cells. Ciliated. Now next one is ciliated. Now ciliated epithelial tissue may be either columnar ciliated, ठीक है, और क्यूबॉइडल ciliated. तो बेसिकली ज़्यादातर ये देखा गया कि ये जो होता है, दिस इज ciliated columnar ही ये देखा गया हुआ है. ठीक है, यानी कॉलम शेप होती है सेल्स और उनके टॉप पे सीलिया लाइक प्रेजेंट, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. एंड द लास्ट वन इज ग्लैंडुलर epithelial tissue. Clear? Now glandular means a tissue which is performing like gland and helping in the secretion of the various things. ठीक है, one by one I am going to tell about each and every one. Suppose I am going to start from the squamous epithelial tissue. So it's a simple squamous epithelium consisting extremely thin and flat cells forming a delicate lining. ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही फ्लैट सेल्स होती हैं, बहुत ही थिन सेल्स होती हैं और बिल्कुल फ्लैटेंड होती हैं, सरफेस के साथ चिपकी हुई, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ चिपकी हुई ये सेल्स होती हैं. एंड यू विल फाइंड आउट दीज सेल्स इन द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ. If you will touch the tongue, your tongue from the mouth surface or mouth cavity, then you will the touch the surface which you are touching is the example of the squamous epithelial tissue. Similarly, it is also present in the lining of the esophagus. Now your mouth cavity or your oral cavity opens into a long tube. This is called esophagus. Its inner lining is also made up of squamous tissue or squamous epithelial tissue. Now skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in pattern of the layers, so that are called as stratified squamous epithelium. Okay, but I am not going in detail, but I want to explain one more thing. ठीक है, तो जनरली एपिथेलियल टिश्यू इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी अबाउट दैट कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है, सिंपल एपिथेलियल और स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, स्ट्राटिफाइड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें सेल्स की केवल एक ही लेयर होती है. ठीक है, होती तो एक ही लेयर है. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दो तरह का एपिथेलियम होता है. कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल लेयर होती हैं और सिंपल में जनरली एक ही लेयर होती है. बट स्ट्राटिफाइड में आप देखेंगे कि आप अगर एक कॉमन लुक अगर आप देखेंगे, एक कॉमन अपीयरेंस में आप देखेंगे, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपको देखने से लगेगा कि मल्टीपल लेयर्स हैं सेल्स की. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और ये ऐसा प्रेजेंट होता है आपकी स्किन पे. इफ यू विल टच योर स्किन, द स्किन इज द एग्जांपल ऑफ द स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, तो दूसरा टिश्यू जो है वो है, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप सेल्स, यानी क्यूब लाइक यानी क्यूब शेप की सेल्स होंगी विद राउंडेड न्यूक्लियस और इनके बीच में एक राउंड शेप न्यूक्लियस होगा. ठीक है, एंड ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. एंड दीज आर प्रेजेंट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी किडनी से जो निकलती हैं ट्यूब्स. ठीक है, उन ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नाउ इन हायर क्लासेज यू विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो यू विल फाइंड आउट दैट यूरेटर्स निकलती हैं किडनी से.
ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये प्रेजेंट होंगे, देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ द सलिवरी ग्लैंड्स, यानी आपकी माउथ में सलिवरी ग्लैंड है, उससे जो सलाइवा निकलता है वो डक्ट के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो ये डक्ट जो बनाती हैं, इसकी इनर लाइनिंग भी किसकी बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मैं पूछूं कि इसका फंक्शन क्या है, ना इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा ही देगा। इसके साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन प्रोसेस। तो कई चीज़ों का सिक्रेशन करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा एक्सक्रीशन यानी चीज़ों को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में मदद करता है। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड वन इज कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द टॉल सेल्स। कॉलमनर है तो कॉलम शेप होंगी, जाहिर सी बात है कि दीज आर पिलर शेप और लॉन्ग, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स, दीज आर हैविंग इलोंगेटेड सेल्स, एंड द न्यूक्लियस इज बेसिकली, जो न्यूक्लियस इनके पास होता है वो इस कॉलम के बेस के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। जनरली कहाँ ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगी? आपकी जो इंटेस्टाइन है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग मतलब अंदर की ओर की जो सरफेस है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इसका मेन काम क्या होता है? चीज़ों को एब्जॉर्ब करना और चीज़ों को सिक्रेट करना, यानी फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल ग्लैंड है तो वहाँ पर सिक्रेशन का काम करेंगी ये। ठीक है, द कॉल्यूमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल पेरियर। तो इसके अलावा तो अब देखिए, एपिथेलियल टिश्यू जनरली मैंने कहा था प्रोटेक्टिव हैं, ये एक्सटर्नल मीडियम को इंटरनल मीडियम से सेपरेट करने का काम करते हैं, बट इंटेस्टाइन में आप देखेंगे कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे चीज़ों को एब्जॉर्प्शन होकर के बाहर से वो अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, द फोर्थ वन इज सीलिएटेड एपिथेलियम, एंड सीलिएटेड एपिथेलियम इज मोस्टली प्रेजेंट इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इसमें फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जो बेसिकली आपके किसके एग्जांपल हैं? सीलेटेड एपिथेलियम के हैं। ठीक है, द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया which are hair like position on the other surface of the epithelial cell, and these cilia can move, and their movement pushes the mucus forward to clear it। तो बेसिकली आपके नेजल कैविटी के अंदर आपको आपको सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपको पता है, एक तो ये डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं और दूसरा म्यूकस के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। समटाइम्स द एपिथेलियल टिश्यू acquired some additional specialization, ठीक है, like a gland cell which can secrete substances at the epithelial surface। A portion of the epithelial tissue folds inwards to form a multicellular gland called glandular epithelium। कभी कभी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाई होकर के जो इसकी इनर सरफेस है थोड़ा सा फोल्ड हो जाती है, और वो एक ग्लैंड का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जो कई चीज़ों को सीक्रेट करने में या रिलीज करने में हेल्प करती है। Now here in this figure you can observe all the different kinds of tissues. Now the first one is squamous tissue, the second one is columnar tissue, third one is you are observing cuboidal shaped cells are here, तो cuboidal tissue। फोर्थ वन स्ट्राटिफाइड, स्ट्राटिफाइड में आप देख रहे हैं मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स आपको नज़र आ रही है। ठीक है, स्किन में प्रेजेंट है जो। उसके बाद आप सीलिएटेड कॉल्यूमनर हैं, तो कॉल्यूमनर बट इनमें सीलिया प्रेजेंट है टॉप में आप देख रहे हैं। नाउ द लास्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है, जो इनर सरफेस होती है इन सेल्स की वो फोल्ड हो जाती है और ग्लैंड्स का शेप ले लेती है। ठीक है, तो सो आई थिंक द किंगडम सॉरी द आई थिंक द टिश्यू epithelial tissue concept is clear now। You are able to answer that what are epithelial tissues and what are its various types and what are their functions। ठीक है, I think it's enough for today। ठीक है, rest till tomorrow, and tomorrow I will meet you with the next kind of tissue। Till then, thank you and bye bye।